छोटे सवाल छोटे जवाब का ज्यादा लोगों को मौका। Thank you. We are a wonderful time. My straight question to you is, what do you think and what is your perception about where is India going and what is the future of our country? And what should we do to make it best from where it is? आज जो हमने जो वैक्सीन बनाई है, यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने खुद उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है which I am using in the film, उन्होंने बोला है कि इंडियन वैक्सीनेशन इंडस्ट्री इज नाउ द एसेट ऑफ द वर्ल्ड and it is the responsibility of the entire world to protect. ये आपका कॉमेडी सेंस बहुत जबरदस्त है, टाइमिंग बहुत जबरदस्त है। तो आगे आने वाले समय में कुछ इस लीग से अलग रखकर कॉमर्शियल फिल्म या फैमिली ड्रामा या कॉमेडी ऐसी कोई फिल्म बनाने का विचार है क्या? मैं इसके पीछे मार्च से पड़ा हुआ हूँ कि मैं इसका टॉक शो कर लूँ। अभी कौन सा महीना है? पीछे पड़ा अल्टीमेटली इतना आके इसलिए ऑफिस में फोन करा। ये तो 6 महीने पीछे पड़ा है। मैं तो पिछले 30 साल से इसलिए स्ट्रगल कर रहा हूँ कि एक दिन मुझे अपने शो में बुलाएं। सारे क्वेश्चंस मगों में उठाए। मैडम अभी इनका हाल ये है कि वो हो या टो हो, जिस पे हाथ लगाएंगे हिट जाएगा। So ladies and gentlemen, give a big hand. I'll invite now Mr. Vivek Agarwal. Most welcome to us. Yeah. Siddharth. My straight question to you is, Yeah, you can take the mic. I- No, I have the mic because पीछे वाले नहीं सुन पाए. thank you. We are a wonderful time. My straight question to you is, what do you think and what is your perception about where is India going and what is the future of our country? And what should we do to make it best from where it is? See, what is a country? First of all, listen, what's a country? Country is its people. Okay? Now, what is happening in this world is that there is a news every 20 years, this world goes through one scam, one agenda-driven scam. Now, under the garb of globalization, what is globalization? In globalization, what they are trying to do is to uniform the taste of the people. Because it's very difficult to sell one product in different countries with different messaging. So they want that the whole world should consume same products. They should same ideology, one God, one belief, one everything. That is what the globalization is all about. In short, therefore, it is also destroying the cultures of native countries, which is why the new Prime Minister of Italy, she spoke very against it. In Britain, everybody is saying why right wing is coming. It's not about right and right. The main thing is that the people of every country are feeling threatened that their old traditions and heritage is getting destroyed. That is a general feeling among people. In this, because the West is mostly individual-driven societies, they have huge conflict. लोग कहते हैं इंडिया में conflict है, आप अमेरिका जाइए तो मैं भी 1.5 महीने का आप यकीन नहीं कर सकते कि societies are crumbling. They have a massive problem. India has an opportunity. We are the only society left in the world which is a very strong family bond. Second thing is our diversity. Diversity does not mean that people from different race and religions and faiths are living in one area. It means everyday interaction. India has the most transactional diversity in the world. No other country has that kind of diversity. On everyday basis, we have so much of interaction between different communities and everything. And the third thing is that when there is so much of hyper consumerism and materialism, then you need a fallback anchor, and that fallback anchor is spirituality. Spirituality does not mean that you go to an ashram and close your eyes and meditate. Spirituality is your interaction with the nature and the surroundings and life. Your understanding and how you surrender to the situations of life. That's what spirituality teaches you basically. To understand, yes, this is the cycle of life. That is in our DNA. Nobody has to teach us. Every child born in this country knows it. So I'm talking in more qualitative terms than in GDP terms and all that. My faith is, my belief is that today the only country which has an opportunity to shine and lead the world is India, undoubtedly. Now it all depends. The problem is for 70 years we have been, or for 1,000 years, we have been taught to depend on government.
But societies don't become leaders because of government. No society ever in this world has become leading society because of the governments. Governments have their own compulsions. I think it's time for us to collectively, number one, believe in ourselves. We have to believe, yes, we can do it. Number one. Number two, how will you believe that we can do it? Most important thing is parenting. And the whole responsibility comes to parents that what you are going, what aspiration the new generation is going to have. If every child is going to have an aspiration कि चलो यहाँ से अमेरिका में भागो, तो आप माँ बाप बहुत क्रूर नहीं होंगे. कई बार बच्चों को गलत एस्पिरेशंस और ड्रीम्स देके उनकी जिंदगी तबाह कर देते हैं. और आप बिलीव करिए मेरी बात को, जो लोग रह के आए हैं, अपने बच्चों को अमेरिका और यूके और बाकी जगह भेजने का जो ड्रीम और एस्पिरेशन है, वो क्रूएल्टी की निशानी है. बिकॉज आप उनको नर्क में भेज रहे हैं, आप उनको स्लेवरी में भेज रहे हैं, सारी जिंदगी स्लेवरी में बिताते हैं. माँ बाप नहीं रहे तो उनके पास आने का टाइम नहीं है. अरे भोपाल में बहुत रिटायर्ड लोग रहते हैं, सबके बच्चे बाहर हैं, आप देख सकते हो उनके घरों में जाके आपको समझ में आएगा कि क्या स्थिति है. और वहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति की गाड़ियाँ खरीदने लेने से सक्सेस नहीं होती. So what I'm trying to say is that it's very important how we shape the youth of this country, how we mobilize them, and how we start believing in ourselves that yes, we can do it. We have great opportunity. Yeah, want to ask? सर आपने अभी बताया था कि 70-80 के दशक में सर वामपंथियों ने एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट था वो एक तरीके से बोला कि उसका नैरेटिव हम चेंज करेंगे. तो सर अभी 40 साल से तो उनका चल ही रहा था, हम लोग ने खूब पढ़ा और उनकी हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ी. तो सर आपको लगता है 2014 के बाद से ये नैरेटिव चेंज होना शुरू हुआ, लाइक करंट जो हमारी सरकार है उसने इस नैरेटिव को चेंज करने की कुछ शुरुआत करी? कहीं पे तो चेंज हुआ ही होगा. इसीलिए आप देखिए आज चारों तरफ बैठ के अरे it became possible to do lots of things. आप जो लिटरेचर फेस्टिवल्स थे, आप देखिए उसमें आज जिन लोगों को कभी बुलाया नहीं जाता था, बॉयकॉटेड, जब धीरे धीरे उनको बुलाना शुरू हुआ है. जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम की बात है, वो चेंज होना बहुत आवश्यक है. आप जैसे ICCR है, उसमें मैं भी रिप्रेजेंट करता हूँ, उसमें जो पूरी बॉडी है वो चेंज हुई है. तो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही, बट वेरी स्लो चेंज बहुत स्लो है. तो चेंज इसलिए स्लो है कि कोई भी चेंज लाने के लिए आज की तारीख में उसका कमर्शियली सक्सेसफुल होना भी पड़ता है. तो जब वो प्रोडक्ट्स को यूज, आप क्यों चेंज देखिए, और 2014 क्यों, आज पतंजलि देखिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियां उनसे डरती हैं. है तो इंडियन ही नॉलेज ना. आज योगा भारत का एक सॉफ्ट पावर बन के निकला है, योगा ही नहीं निकला है. बहुत सारी ऐसी इंडियन नॉलेज है जिसको आज वर्ल्ड एक्नॉलेज करता है. आज जब ये मैं चूंकि रिसर्च कर रहा हूँ इतना ज्यादा वैक्सीन के ऊपर, आज जो हमने जो वैक्सीन बनाई है, यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने खुद, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है व्हिच आई एम यूजिंग इन द फिल्म, उन्होंने बोला है कि इंडियन वैक्सीनेशन इंडस्ट्री इज नाउ द एसेट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड टू प्रोटेक्ट. तो ये चेंज ही तो है. और ये चेंज कैसे, आज वैक्सीनेशन का लोगों ने देखा 250 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना कोई मजाक बात है. विदाउट वैक्सीन हेजिटेंसी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है. तो जैसे हमारी सोलर, पूरी जो हमारा सोलर रेवोल्यूशन है, पूरा वर्ल्ड में जहाँ जाता हूँ पीपल एक्नॉलेज इट. नो कंट्री हैज बीन एबल टू डू इट. पर हमारे कब हो गया आपको पता भी नहीं चला. एंड टुडे वी आर द लार्जेस्ट सोलर पावर मैन्युफैक्चरर्स. तो दोस काइंड ऑफ, पर एजुकेशन की जहाँ तक बात है, आई थिंक अ लॉट हैज बीन डन. और वो कैसे होगा, अगर हर मिडिल क्लास फैमिली का एस्पिरेशन होगा बच्चे को कॉन्वेंट में भेजने का, तो गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, कैसे होगा उसमें? जस्ट आपने जो कहा मैं उसका बहुत समर्थन भी करना चाहूँगा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए साधुवाद भी देना चाहूँगा. पर एक जस्ट एक अटेंशन ड्रॉ करने के लिए फिल्म आई थी, फिल्मों की बात चल रही है, जिसका मैंने बहुत विरोध किया था और बहुत पॉपुलर फिल्म थी. वो फिल्म थी क्वीन, और मैंने उसके खिलाफ लिखा था कि वुमेन लिबरल फ्रीडम, वुमेन्स अचीवमेंट इज दैट शी इज ड्रिंकिंग एंड रिमूविंग हर टूल्स. अगर स्त्री मुक्तिकरण ये है कि वो दारू पीना शुरू कर दे और अपने कपड़े उतारना शुरू कर दे, और ये नैरेटिव, आश्चर्य की बात है उस फिल्म को फ्रेंच गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था.
तो हमारे यहाँ जो हो रहा है, जो आप बात कह रहे हैं, उसको कोई समर्थन नहीं कहना चाहूँगा। और आपसे नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए वेस्टर्न तरीका है। उनका क्या है, दे वांट द एंटायर पॉपुलेशन टू बिकम लेबर। लेबर से कोई डिमीन नहीं करना चाहता, मतलब हर कोई काम करे, नौकरी करे, ये उनका एक मॉडल है। तो दे हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट द हाउसवाइफ सिस्टम, जिसको हम गृहिणी बोलते हैं, हाउसवाइफ इज नॉट ऑन द राइट वर्ड। वो उसके अगेंस्ट रहे हैं और वो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जिसको आप फेमिनिज्म बोलते हैं, वो सही मायने में फेमिनिज्म नहीं है। अगर वो सही मायने में फेमिनिज्म होता तो बॉम्बे की लोकल ट्रेन में जिन लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, उसके साथ क्यों नहीं खड़ा होता है वो? तो जो फेमिनिज्म मूवमेंट है, ये बेसिकली टू कन्वर्ट हाउसवाइफ्स इनटू दिस थिंग। अब वो कैसे करेंगे? उसके लिए उनको रिबेल करवाना पड़ेगा। रिबेलियस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में लेफ्टिस्ट लोग करते हैं। जब एक छोटे शहर का लड़का लड़की आता है, उसे कहते हैं तुम सिगरेट नहीं पीते, बड़े बैकवर्ड हो यार। तुम फ्री सेक्स में बिलीव नहीं करते, बड़े बैकवर्ड हो। और तुम दारू नहीं पीते, तुम कैसे कहोगे? और वो लड़के लड़की धीरे धीरे अडेप्ट किए जाते हैं उस सिस्टम के अंदर। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट का इसको लेना देना नहीं है। एक्चुअली एम्पावर्ड आदमी तो वो है जो ये ना करे। Not to accept bad habits is actually empowerment. और अगर empowerment पे मैं काफी बात भी करता हूँ, मेरी कई बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स भी हैं, अभी टाइम नहीं है। लेकिन अगर कोई empowerment समझना चाहता है, women empowerment, तो बिना भारत की महिलाओं को समझे वो समझ ही नहीं सकता। क्योंकि empowerment की शुरुआत होती है sacrifice से, त्याग से, और भारतीय महिलाओं से ज्यादा त्याग दुनिया में कौन? Just one. सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही बधाई है, बहुत साधुवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा काम किया है। मतलब एक तरह से शौर्य को जैसे जगाना होता है, अपनी पुरानी संस्कृति को, अपने अपने रूट्स को जगाना होता है, आपने उसका काम किया। और दूसरा तो खुद को लाने का काम किया, ये बहुत अच्छा काम। और उसके लिए मेरे पास एक स्टैंडिंग ओवेशन आपके लिए बनता है। Let's confide the questions. After appreciation can be done. ये गोपाल घर है, घर वालों को करनी है। ये particular है। मेरा जो क्वेश्चन है आपसे तो ये सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट होती है अभी शांति कॉन्फ्रेंस जो होने लगी है इसमें एक लगे मैं उनके साथ एक डिस्कशन कर रहा हूँ 21 तारीख को, आप देख सकते हैं 8 बजे। तो उस बुक में आप देखिएगा कि दिस इज स्पॉन्सर्ड एंड प्रिंटेड बाय द हार्वर्ड एंड मिनी टॉप यूनिवर्सिटी। तो ये सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट इतना डीप है और 1000 साल से चलता है। बिकॉज़ जो न्यू रिलीजन्स है क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम, these two leaders are out. तो जितना भी डीप कॉन्फ्लिक्ट है, is a huge danger for us because those countries like Christian countries they have the power of money, power of defense. Muslim countries they have the power of Buddhism and manipulation and all those things. So where this Hinduism until they really they little bit deselection now has reached the world is the last after 1000 years. This government is doing some deselection and some people like you who are coming up. But the whole scenario looks very difficult. हिंदुस्तान का प्रभाव क्या है? I am request you to ask the questions. Our discussion will take a lot of time. You're right, not What is your opinion about ये it? बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। मेरा ये कि दुर्भाग्य क्या है, आपको एक चीज ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। ज्योग्राफिकली क्या है, हम एक तरफ घिरे हुए हैं कम्युनिस्ट कंट्रीज, राइट? वो भी अपने आप में एक रिलीजन है। दे आल्सो वांट टू स्प्रेड कम्युनिज्म एवरीवेयर। और दूसरी तरफ हम एक जो डिस्टर्ब इस्लामिक कंट्रीज है, जितनी अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, उधर बांग्लादेश हो गया, उसके ऊपर आप देखिए ईरान, इराक, सीरिया, सारी डिस्टर्ब कंट्रीज हैं। हमारे पड़ोस में दुबई नहीं है, राइट, जो कि स्टेबल कंट्री है। तो ये सारी कंट्रीज में पूरा हमारे चारों तरफ हम एक तरफ टेररिज्म से और एक तरफ कम्युनिस्ट जो नेशनलिज्म है उससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और ये भारत को डिस्टेबलाइज करना पूरी तरह से उसकी योजना है, वो सबको सूट भी करता है ये बात। तो द ओनली वे टू सर्वाइव राइट नाउ इज कि जब ये एक माइंडसेट बने हमारे यूथ के अंदर कि नो दिस इज माय कंट्री एंड आई हैव टू फाइट फॉर इट, तब तक हम नहीं लड़ पाएंगे। और हम जब यूनाइटेड होते हैं तो भारत की ताकत भी बहुत गजब की है। वो एक और ये एक तो ताकत ही होगी,
और जो सबसे बड़ा देखिए, अगर आपकी बॉडी में जब कैंसर होता है तो क्या करते हैं, जो जिस सेल से शुरू है उसी को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको खत्म करते हैं, और जो अच्छे सेल्स हैं जिनकी आपकी बॉडी अच्छी बनती है उनको फिर से रिजुविनेट करते हैं। तो इसलिए जो हमारा फैमिली सिस्टम है, दे वांट टू डिस्ट्रॉय इट, क्योंकि सारा जो कल्चर, हेरिटेज, संस्कार जो होता है फैमिली सिस्टम के अंदर होता है, दे वांट टू डिस्ट्रॉय फैमिली सिस्टम। और इसीलिए हम लोगों को फैमिली सिस्टम को फिर से स्ट्रॉन्ग करने की बहुत आवश्यकता है। कैसे, अब आपका एक बच्चा बैंगलोर में रहता है, बेटी हैदराबाद चली गई है, हम बूढ़े माँ बाप यहाँ पे ही हैं, तो कल ही मैं अपनी वाइफ से भी बात कर रहा था, वो बहुत आवश्यक ही है कि माँ बाप लोगों ने भी बच्चों से बात करना छोड़ दिया आजकल, तो व्हाट्सएप के थ्रू बात करने लगे हैं, और जब हम व्हाट्सएप के थ्रू बात करने लगते हैं तो बातचीत ही रह जाती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग पर्सनली लोगों से मिले, बातचीत करें, उनको, बच्चों को अपने साथ जोड़ें, और जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब बातचीत ज्यादा करते हैं एक दूसरे से, तो सब एक सोसाइटी और फैमिली जुड़ती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और जब हम अलग अलग होते हैं तो लोग उसका बहुत फायदा उठाते हैं। Yeah, I think there was one girl there, yeah. बहुत दिव्या को दे दो पीछे, उसका काफी देर से आप yeah, please, दिव्या। Hi. So, you spoke about change, you spoke about spirituality. So, for me, spirituality is not having an evolved mind, right? Open mind. I did not understand your disconnect with the A2 Bank ad, which you tweeted last week. It was about a change. It was about, जो हमारी कितनी, it's about changing a pratha, right? तो उसमें गलत क्या था? I did not understand the disconnect with that ad. जब आपको अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आपको हार्ट में प्रॉब्लम है या किडनी में प्रॉब्लम है, तो आप किसके पास जाते हैं? उस चीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो आप किसी कारपेंटर के पास तो नहीं चले जाते, बार्बर के पास कि इसका इलाज बताओ। अगर आपका बार्बर जो है या आपका कारपेंटर, आप या ब्यूटी पार्लर में गई और ब्यूटिशियन आपको बताने लगी कि किडनी का कैसे इलाज करना चाहिए, तो आप उसकी थेरेपी क्या है? तो मैंने कभी ये नहीं बोला चेंज नहीं होना चाहिए, मैंने इसमें ये नहीं बोला कि जो दिखाया वो सही है गलत है। मेरा ऑब्जेक्शन ये था, एक बैंक की क्या अथॉरिटी है, क्या नॉलेज है, क्या रिसर्च है कि एक जो हजारों सालों से ट्रेडिशन, सिर्फ इंडिया में नहीं, और वो कोई हिंदू ट्रेडिशन नहीं है भाई, क्रिश्चियंस के भी तो लड़कियां शादी करके आदमी के घर जाती हैं, मुस्लिम से भी तो वही जाती है, बुद्धिस्ट क्या भी तो वही करती हैं। कितना परसेंटेज वर्ल्ड के आपके हिसाब से वर्ल्ड में कितना परसेंटेज? तो मोस्टली, हाँ चलिए जो भी है, Keep your mic close to your mouth. तो वर्ल्ड में मोस्टली हजारों सालों से परंपरा चली आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही या गलत है, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। उसको चेंज करने के लिए आपने ऐड बनाया कि नहीं, अब जो है मर्द लोग और लड़कियों के घर जाएंगे, और आपने वो जो ससुर है उसको भी व्हील चेयर में बैठाया। मैं एडवर्टाइजिंग का भी, मुझे उसका इंटेंशन एक सेकंड में समझ में आया। मैंने सिर्फ ये लिखा कि भाई आप सोसाइटी को, हजारों सालों की सोसाइटी की प्रथाओं को चेंज करने के पहले जो आपके हाथ में, जो आपके कंट्रोल में, बैंकिंग सिस्टम के करप्शन को चेंज करने की कोशिश करिए, उसके बाद समाज के ऊपर आप कमेंट करिए। दैट वाज माय कमेंट, और ये मेरा बिलीफ है। कार मैन्युफैक्चरर्स क्यों सोसाइटी चेंज कर रहे हैं? अगर ऐसा करना है तो कार बंद करें, फिर सोसाइटी चेंज करने आए। सोसाइटी चेंज करने का काम सोशल रिफॉर्मर्स का, सोशल साइंटिस्ट का, फैमिलीज का, उनका होना चाहिए। आज फिल्म इंडस्ट्री को चेंज करने का काम जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनको करना चाहिए। पॉलिटिक्स को चेंज आप और हम नहीं कर सकते, आप कितनी भी बातें कर रहे, पॉलिटिशियंस को करना चाहिए। एक बैंक का, राजस्थान में एक बैंक है, वो अपनी बैंकिंग की बात नहीं कर रहा है अपने ऐड में, लेकिन वो लड़की को लड़के के घर जाना चाहिए, लड़के को लड़की के घर जाना चाहिए, उसमें कर रहा है, जो इंटेंशन है वो गलत है। इसलिए आई रेज माय वॉइस। अगर ये बात आपने कही होती, मैं कभी जिंदगी में उसे अपोज नहीं करता। मैं आपसे ऑफलाइन डिस्कस करूंगी। आई एम नॉट कन्विंस्ड विद योर आंसर, बट आई विल डिस्कस इट ऑफलाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू भोपाल। आपसे मुलाकात का और आपकी बातें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा एक सीधा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारा सब बताया कि हमारा जो संस्कृति है वो पुरानी है, 5,000 साल पुरानी है। यहाँ पर अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी। क्या कभी ये हाईलाइट हम कर सकते हैं किसी फिल्म के द्वारा कि हमारे पास इतना अच्छा सिस्टम हुआ करता था कि दुनिया हमारे पास आती थी पढ़ने के लिए? तो ये जो हमारे यहाँ के लोग जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो हमारे जो लोग हैं जो फॉरेन को देखते हैं और ये इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और अपने आप को समझते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा एजुकेशन पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे आके वो लोग बहुत अच्छा कर नहीं पाते, तो वो वहीं के होते रह जाते हैं।
इनको किसी तरह रोका जाए। ये देखिए, ये सिनेमा नहीं रोक सकता जब तक आप अपने आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, हमारे तो भोपाल में है, कौन से स्कूल में पढ़े, बीएसएस में पढ़ते हैं कॉलेज, स्कूल कहाँ है? स्कूल बेलापंसी के है। जब तक आपके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे तब तक कोई दुनिया की ताकत नहीं होगी। आप कितनी भी फिल्में बना लें, कुछ भी कर लें, क्यों क्यों सबका एम्बिशन है कॉन्वेंट स्कूल में देखना, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ऐसा क्या स्पेशल चीज मिलती है? हर माँ बाप का हमारे बच्चों को अंग्रेजी जरूर आनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो गुलामी है, जब तक आपके दिमाग, ये तो आपका दिमाग है ना भाई, ये तो सरकार नहीं चला रही है, इसको तो अमेरिका नहीं चला रही, तो आप ही का अपना दिमाग है ना। तो जब तक आप अपने दिमाग से ये अंग्रेजी की गुलामी नहीं निकालेंगे, अपने बच्चों के त्योहार में आप बुलबुले बनाना बंद कर दिया, आप केक मंगाने लगे, तो आप ही जब अपनी जिंदगी को किसी और के हवाले कर रहे हैं तो आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं है। Yeah, there. You want to ask? I Yeah, just yeah. have something to say, which is जो भी बात मैम कर रही थी, या जो सर ने बोला Keep the mic pretty close. कि क्वीन में ये सब सिखाया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैदिक समय में गार्गी, मैत्री, लोपा वो ट्रू फेमिनिज्म है। पेट्रार्की इन सब जॉर्गन्स में हम फंस गए हैं और हमको लगता है कि ये फेमिनिज्म है, पर अगर आप पुरानी वैदिक संस्कृति में जाएं तो देखिए वैदिक विदुषियां रही हैं जिन्होंने इंटेलेक्चुअल फेमिनिज्म की बात की है। उन्होंने जनक के दरबार में मैत्री ने यज्ञावल्क्य जैसे महान उनको चैलेंज किया है, शी वन है। और तो ये जो एक इंटेलेक्चुअलिज्म फेमिनिज्म था वो अब कहीं खत्म हो गया, और ये जो सो कॉल्ड तो क्या आई कैन ड्रिंक, आई कैन स्मोक, आई कैन डू दिस, आई कैन दैट हैज बिकम फेमिनिज्म। पर उन्होंने जैसे विवेक भाई साहब ने कहा, आपने कहा कि अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाएं, वैदिक पीरियड के टाइम पे जाएं और देखें कि हम क्या लेके आ रहे हैं, क्या डीएनए है हमारा इस सनातन परंपरा का, तो हम ये पेट्रार्की, ये एक्ट्स, इसमें फंसेंगे। अगर वो कड़ी बीच की मिसिंग हो गई ना, तो दैट्स व्हाट, वो कड़ी जोड़ना बहुत आवश्यक है। वो कड़ी सिर्फ माँ बाप जोड़ सकते Yeah, हैं। Karan, you can ask. Yeah. Please come from Vidisha. First of all, sir, I would like to thank you for sharing us your thoughts and spending your precious time here. And Jayanta, kudos to you for organizing this good show. Sir, मेरा follow-up question ही माना जाएगा, क्योंकि मैं जो अंग्रेजी और इंग्लिश के रिगार्डिंग की बात हो रही है, तो इवन आई थिंक कि जो इंडिया में माना जाता है कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप गवाह हैं, आप ये हैं, ये आई थिंक ये एक इंडिया श्राप है। पर कहीं ना कहीं मेरा ये मानना भी है कि ये अपनी एक इंडिया की बहुत स्ट्रेंथ भी बना है, क्योंकि मैं खुद यूएस में पढ़ा हूँ। तो आई स्टिल रिमेंबर कि जब कैलकुलस की एग्जाम हुआ करती थी और ये मैथ्स की एग्जाम हुआ करती थी, तो कोरियंस और चाइनीज जो थे वो पहले क्वेश्चन को इंग्लिश से उनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे, उनके नंबर्स वगैरह सब अलग रहते थे, फिर उसको वो सॉल्व करते थे और फिर उसको वो अपनी लैंग्वेज में आंसर लाते थे और फिर वो कन्वर्ट करते थे। आई स्टिल रिमेंबर दिस। और कहीं ना कहीं आप अगर देखें कि इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है, इट हैज बीन द बेस्ट इन द वर्ल्ड। टीसीएस, इन्फोसिस, आज इंडिया में मतलब आज इंडिया की बैकबोन बनी है। और अब TCS and Infosys they are coming from back end, अब वो सिर्फ back end नहीं रह गई, they are coming from back end to front end as well. So और अब धीरे धीरे जैसे मेडिकल एजुकेशन में भी आज अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का डेवलपमेंट है कि वो हिंदी में स्टार्ट करेंगे। तो इवन मेरे को खुद को नहीं पता सर मेरा क्या ओपिनियन है इसमें, इवन आई एम एक्सप्लोरिंग माय ओपिनियंस ऑन दिस, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये हमारे लिए ग्लोबल मतलब वर्ल्ड एज अ मार्केट, what China has done, world should be a market, so कहीं ना कहीं ये हमारे लिए वो दरवाजे बंद कर देगा, क्योंकि जब पहली बात तो बहुत मिसअंडरस्टैंड, ये लोगों को बड़ी गलतफहमी भी है। इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि इंग्लिश भाषा से आपकी लड़ाई है, भाषा तो सब अच्छी होती है। मैं तो कहता हूँ आप फ्रेंच भी सीखिए, जर्मन भी सीखिए, जापानीज भी सीखिए, आपका वर्ल्ड व्यू बढ़ेगा। भाषाएं सारी अच्छी होती है, गलत मत समझो। यही प्रॉब्लम है कि वो सारी बात आपके भाषा, लड़ाई भाषा से नहीं है, अंग्रेजी माइंडसेट की गुलामी करना। मैं कॉलोनियलिज्म वर्ड करूंगा तो तुमको बहुत समझाना पड़ेगा, तो तुम्हारे लिए आसान करने के लिए, ताकि आम आदमी समझ सके अंग्रेजी की बात है। ये पूरा जो ये हम कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे को क्यों भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं कि वो अंग्रेजी सीख सके।
इसलिए नहीं भेजते कि उसका एजुकेशन ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपने कोई रिसर्च ही नहीं की, आपको पता ही नहीं है। पर जितने आईएएस ऑफिसर भी बनते हैं, सब बनते हैं, अगर आप देखिए तो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल और केंद्रीय विद्यालयों से पढ़ के बच्चे आते हैं, और जो शाइन करते हैं आईटी इंडस्ट्री में, जिसकी अमेरिका की तुम बात कर रहे हो, कितने सारे लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आते हैं। और दूसरी बात तुम जो कह रहे हो वो गलत है। मैं तो इतना अमेरिका जाता हूँ, आईटी इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते हैं उनको तो अंग्रेजी आती भी नहीं है, वो तो तेलुगु बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, छोटे छोटे गाँव से वो लोग आए हुए हैं। और तीसरी बात, जिस आईटी इंडस्ट्री को लेकर इतना गर्व तुम कर रहे हो, जो हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, वो सिर्फ अंग्रेजी बोल के हम लोग किसी और की स्लेवरी कर रहे हैं। हमने कितने जितने ऐप्स तुम्हारे फोन में, उसमें हमारे कितने बनाए हुए हैं, हमने कितने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, हमने उसमें क्या, हम नौकरी करते हैं, और अगर कोई किसी का सीईओ बन जाता है तो बड़ी शान से बोलते हैं देखो सीईओ बन गया, पर क्या फायदा है, वो तो आपके देश के लिए कुछ कर नहीं रहा, उसका तो कोई लेना नहीं। लेकिन जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ है, जो नॉलेज हमारी है, फिलॉसफी फॉर एग्जांपल, वो अंग्रेजी में सीख के जाओ ना, दुनिया में फैलाओ। योगा जिन लोगों ने फैलाया वो तो बिना अंग्रेजी के किया, वो तो योगी लोगों को, बाबा रामदेव को कौन सी अंग्रेजी बोली है, तो योगा फैलाने वाले लोगों को तो, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरी फिल्म में कश्मीर फाइल सारी दुनिया में जाके उसने आप चेंज किया नैरेटिव, वो तो इंग्लिश में नहीं बनी है, राइट। कंटेंट पे बिलीव करना सीखो, कंटेंट स्ट्रॉन्ग होगा। मेरा कहने का पर्पस ये है, हमारा कंटेंट जो है वो गुलामी का नहीं होना चाहिए, हमारे जो सपने होने चाहिए वो हमारे अपने सपने होने चाहिए, किसी और के हमारे ऊपर लादे हुए सपने नहीं होने चाहिए। वेल सेड सर, वेल सेड। और जो लोग आईटी इंडस्ट्री की बात करते हो कि अमेरिका में जाके इतना हम लोग रहते हैं, उससे क्या फायदा, उनके माँ बाप तो बेचारे अकेले कमरों में, नल नहीं ठीक है, लाइटें ठीक नहीं है, बेचारे पूरे अकेले बंद घरों में अकेले मर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा हो रहा है। चलिए कोई फायदा नहीं हो रहा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे अपन कमल जैन सर। माइक प्लीज। ऐसे बात चल रही है। नहीं माइक पीछे आवाज नहीं जाएगी। भाई विवेक, आज मैं जिस विवेक को देख रहा हूँ बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बड़ी गंभीर गंभीर किस्म की बातें और गंभीर गंभीर फिल्में हैं, लेकिन मैं जिस विवेक को जानता हूँ स्कूल और कॉलेज टाइम से, हंसी मजाक नेचर उसका, तो मैं ये चाहता हूँ, थोड़ी फिल्मी बात कर रहा हूँ, बड़ा गंभीर चर्चा चल रही है, ये आगे आने वाले समय में क्या कोई फैमिली ड्रामा, कोई कॉमेडी, क्योंकि आपका कॉमेडी सेंस बहुत जबरदस्त है, टाइमिंग बहुत जबरदस्त है, तो आगे आने वाले समय में कुछ इस लीग से अलग हटकर कॉमर्शियल फिल्म या फैमिली ड्रामा या कॉमेडी ऐसी कोई फिल्म बनाने का विचार है क्या? यार अभी तो नहीं सोचा है, पर दुनिया में इतनी कॉमेडी सब लोग कर रहे हैं तो मुझे ऑलरेडी इतनी कॉमेडी चल रही है, तो मैं तो सोचना चाहूंगा, देखेंगे वक्त आएगा तो करेंगे। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। या नितिश या प्रमतेश या 1 मिनट अनु 1 मिनट या प्रतीक 1 मिनट अनु या ठीक। बैक टू कश्मीर फाइल्स। रिसर्च बेस्ड आपकी मूवी आपने बताया तो पसंद है भी और आगे भी होगी। मेरा सवाल ये है कि आपने इसका रिसर्च भी किया है और जितने हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन्होंने भी देखा, एप्रिशिएट किया, उन्होंने क्रिटिसाइज भी, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है? देखिए, समाधान की 3-4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली होती है अवेयरनेस। आप 1940s में ज्यूज के साथ होलोकॉस्ट, लेट 70s तक वर्ल्ड को उसके बारे में पता ही नहीं। फिर 70s लेट 70s में किसी एक अमेरिकन बंदे ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसका नाम था होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट वहां से पहुंचा, और जब उसने वो बनाई और जर्मनी में, तो उसका बड़ा विरोध हुआ, लोग सड़कों पे उतर आए, हमारा ये कैसे बना सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, और ज्यूज के साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन उससे अवेयरनेस क्रिएट, कुछ लोग कहीं और बैठे तो उन्होंने इसके बारे में और जानते हैं, उन्होंने कुछ पढ़ा, किसी ने और बोला, किसी ने चर्चा की, किसी ने बात करी, और धीरे धीरे करते करते 80s और 90s जब तक आए, तब तक उस पर कई फिल्में बनी, उस पर बहुत लिटरेचर लिखा गया, और आज पूरा विश्व जानता है। और आज आप होलोकॉस्ट विश्व में शायद ही कोई मिलेगा जो उसके बारे में नहीं जान सकता। ये कश्मीर जेनोसाइड जो ये हुआ है, एक फिल्म से इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट हुई है।
आज सरकारें भी एक पहले देखिए 10-10, 20-20, 50-50 लोग इतने सालों से मरते चले आ रहे हैं, वो कहते हैं टेररिज्म में भूलना एक ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, आज से इस फिल्म के पहले का आप देख लीजिए स्टैटिस्टिक्स, चाहे 10 लोग मार दिए, 12 कर दिए, चर्चा भी नहीं होती थी, कोई बात भी नहीं करता था। आज एक आदमी मरता है, हेडलाइन बनती है न्यूज़ में। ये एक स्लो प्रोसेस है, पर धीरे-धीरे ये प्रोसेस बनेगी। इसने कश्मीरी पंडितों को यूनाइट भी किया है, और इसकी नेक्स्ट स्टेज जो होगी मेरे ख्याल से पॉलिसी गवर्नमेंट बेस्ड पॉलिसी होगी, और थर्ड जो होगी आई थिंक दैट विल बी असर्शन। लोग जब असर्टिव होंगे कहेंगे नहीं आपने न्याय चाहिए। ये some long term, I will take a little bit of time, as rightly said, to talk about it. Yeah. Sir, thank you so much. Looking at your room, देखा तो लोगों को comfortable out here as well. सिंपल सा उस स्कूल को आप क्या बोलना चाहेंगे जो ऑलरेडी वैल्यू एजुकेशन दे रहा हूँ और होलिस्टिक ऑटोनॉमी से स्टूडेंट्स को और यूथ को एम्पावर कर रहा हूँ, उनको आगे और क्या स्टेप्स लेने चाहिए बिकॉज़ यू करेक्टेड यूथ सो मच। देखिए मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो इसमें ज़्यादा मेरा बोलना सही नहीं है, बिकॉज एजुकेशन कैसा होना चाहिए मुझे ये पता है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो एजुकेशनिस्ट लोग तय करेंगे, तो इसमें मेरा नहीं। पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हर स्टूडेंट को क्रिएटिविटी जो है एज अ सब्जेक्ट समझाना चाहिए कि क्रिएटिविटी क्या है। हमने क्रिएटिविटी की रॉन्ग डेफिनेशंस कर दी, इसीलिए आप जो लोग अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं वो कहते हैं मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, ये हूँ। मैंने पूछा कितने लोग क्रिएटिव हैं, तो लोग मानते ही नहीं हम क्रिएटिव हैं। जिस दिन आप अपने क्रिएटिव पावर को समझ जाएंगे, ये देश जो है ये इनोवेशन हब बन जाएगा। क्योंकि देखिए आज अमेरिका में जो लोग मैनेजमेंट जानते हैं, जो मैनेजमेंट या उसके स्टूडेंट्स उसमें रुचि रखते हैं, वो जानते होंगे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट्स इन द बुक इज कॉल्ड जुगाड़। एक किताब है वो बेस्ट सेलर, उसका नाम है जुगाड़, जिसको अमेरिकन बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। वो जुगाड़ को एक तारीफ करते हैं उसकी, वो उसको एसेट मानते हैं दुनिया का कि ये देखो एक सोच का तरीका है। और हमारे यहाँ क्या जुगाड़ का क्या मतलब है, हमारे जुगाड़ को नीची नजर से देखा जाता है, क्योंकि आपको आगे फ्रंट सीट चाहिए किसी पॉलिटिकल फंक्शन में, जुगाड़ लगाना पड़ता है, बेटे का एडमिशन कराना तो जुगाड़ लगाना पड़ता है, तो उस जुगाड़ को भूल जाइए। लेकिन एक मिडिल क्लास घर कैसे अपने घर की समस्याओं को जुगाड़ से ठीक करता है, उस जुगाड़ की तरह जब हम देखने लगेंगे, उसको एक कंट्री के एसेट की तरह देखेंगे, इंडिया विल बिकम अ इनोवेशन हब। I think now we'll go for the last two questions. We are losing on time now. Yeah. Sima, you will be the last. Then we don't have much time now. We just have last two questions. Yeah. हेलो सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो छोटे छोटे शहर से जो एक्टर्स आते हैं, जो अपने सपनों को लेकर एक बड़े शहर की तरफ जाते हैं, ये सोच के कि हमारा भी सपना किसी दिन पूरा होगा, ऐसे एक्टर्स का सर सपना कैसे पूरा होगा सर? कोई डायरेक्टर, कोई कास्टिंग डायरेक्टर कोई सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि एक छोटी जगह से सर आया हुआ है, तो सर कैसे क्या एक एक्टर को कैसे क्या करना चाहिए? पहली बात तो अपने सपने पे विश्वास करना चाहिए, दूसरा अपना पूरा सामर्थ्य लगाना चाहिए कि किसी और कोई और उस सपने को तोड़ नहीं सके। जब ये दो चीजें तुम्हारे पास होंगी तो तुम्हें अपने आप रास्ता उसमें निकल जाएगा, वरना सपने तो टूटने के ही बनते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सपने मत देखो, एक करियर का प्लान बनाओ। पहले तो ये समझो तुम्हारे पास क्या है, तुम एक्टर बनना चाहते हो, किसी एक्टिंग स्कूल में गए हो, नहीं एक्टिंग सीखी है, थिएटर करना नहीं हो, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर के कॉलेज में जाना पड़ता है, तो इसी तरह से एक एक्टर बनने के लिए कई साल की तपस्या लगती है। ओके, जिसको आप हॉलीवुड बोलते हैं, वहाँ पे आप अपने को बोल सकते हैं मैं एक्टर हूँ, उसके पहले आपको कई घंटों की डबिंग करनी होती है, कई घंटों की वॉइस ओवर करनी पड़ती है, आपको थिएटर में काम करना पड़ता है, कई सारी शॉर्ट फिल्म्स में काम करना पड़ता है। तो जब तुम गाय को चारा ही नहीं खिलाओगे तो वो दूध कैसे निकलेगा उसमें? तो पहले अपने में इन्वेस्ट करो। अगले 3-4 समझ लो तुम डॉक्टर बन रहे हो और इसमें डॉक्टर से ज्यादा पैसे मिलते हैं सक्सेस होने में, तो ये मान लो कि अगले 4 साल जो है मैं पढ़ूंगा, एक्टिंग के बारे में पढ़ूंगा, और एक्टिंग पढ़ो, उसको समझो, और उसके बाद अगर कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता है तब शिकायत करने का। Now we can shift to the last question, पर मैं इसको थोड़ा बता दूं कि धैर्य और सपना कैसे रखना चाहिए। मैं इसके पीछे मार्च से पड़ा हुआ हूँ कि मैं इसका टॉक शो कर लूँ। अभी कौन सा महीना है?
पीछे पड़ा अल्टीमेटली इतना ना कि इसलिए ऑफिस में फोन ये करा तो 6 महीने पीछे पड़े। मैं तो पिछले 30 साल से इसलिए स्ट्रगल कर रहा हूँ कि एक दिन ही मुझे अपने शो में बुलाएंगे। तो धैर्य करो, सपना जैसे राइटफुली विवेक ने बोला, धैर्य रखो, सपना रखो, काम तो पूरा होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट मैं आपको पहले जो मैंने नोटिस किया, एक तो आपने बताया मूवीज के बारे में कि करण जौहर वाली मूवीज मैं खुद चाहती हूँ, बट जो लोगों को पसंद आएगी वो वही पिक्चर देखेंगे। हम अपने बच्चे को बोलेंगे बिकॉज आई फील इन लास्ट 20 years फिल्म इंडस्ट्री दे हैव रियली मेड वेरी गुड मूवीज। सो जो चलती हैं तो वो उनको पैसे मिलते हैं, उनको बेचारे 25 करोड़ मिलते हैं, उनको 250 करोड़ मिलते हैं, सो वो तो बनाते रहेंगे, बट बहुत अच्छी मूवीज बनती है। मैं क्या जब मैंने देखा क्या कहते हैं फीमेल एम्पावरमेंट जो हम लोग बात कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस मर्दों ने उठाए। जो क्वीन का भी था वो किसी मेल ने उठाया। मेरे हिसाब से एम्पावरमेंट वो है जहां औरत को ये अपना डिसीजन ले सके अपने बारे में। सो आई डोंट थिंक सो मेन हैव अ से इन दैट कि व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट। सो दैट इज हर एम्पावरमेंट, सो दैट इज हर जजमेंट। सिमिलरली जो हिजाब का चल रहा है, हम क्या हल्ला कर रहे हैं कि उनको हिजाब नहीं पहनना चाहिए, ये हमारा सरकार नहीं है। वो हिजाब क्यों पहन रही है? वो पहले नहीं पहन रही थी, 6 महीने पहले, 1 साल पहले ये जो बेंगलोर की लड़कियां हिजाब नहीं पहन रही थी, वो क्यों पहन रही है ये हमें देखना है। लेकिन उनको मना करने का आई डोंट थिंक सो वी आर डूइंग द राइट थिंग। जैसे हम ईरान में 4 साल रहे, वहां पे जबरदस्ती हिजाब पहनाया जा रहा है, वो गलत है। सिमिलरली हम जो कह रहे हैं कि आप हिजाब नहीं पहनिए, ये हमारा हक नहीं है। अगर औरत पहनना चाहती है तो वो पहनेगी। औरत अगर आपका बेटा दारू पीना चाहता है, कोई इसको नहीं बोलता है। अगर वो लड़की दारू पीना, बिकॉज मेरे हिसाब से क्वीन जो मूवी थी वो हर लड़की के साथ कनेक्ट हुई थी। आप लेडीज मानती हैं कि नहीं मानती हैं? जिसने भी क्वीन देखी है, एवरी गर्ल कनेक्टेड विद दैट मूवी। सो द women have the right to decide whether it is good movie or bad movie और हम कहाँ गलत जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। एक चीज से सहमत जी, वो उसको अलग तरह से समझने की। जी। आपके टोन से ऐसा लग रहा है जैसे कि आप आदमियों की दुश्मन ऐसा मिलजुल के। और अगर आदमी ने भी ओपिनियन नहीं दी तो क्या बुरी बात है, होते भी तो आदमियों के बारे में बोलती। हमको थोड़ा टॉलरेंट होना तो चाहिए। गाय आप से टॉलरेंट की बात नहीं, नहीं, मैं आपकी बात आदमी 1000 साल से द्रौपदी रही हो, चाहे वो सीता रही हो, आदमी ही डिसाइड करता आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें बस इसीलिए देखिए आप तो मेरी बात आपने बोली, अब एक बात सुनिए। अच्छा, आपने के इसमें गहराई में नहीं जाएंगे, पर एक बात बताऊं। इसीलिए आप देखिए कि दुनिया में आज सरकार की पॉलिसी क्या है, बच्ची को पढ़ाओ, भाई विमेन एम्पावरमेंट पे गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करती है, जितनी सोच एनजीओ है वो औरतों के लिए काम कर रही है, औरतों के लिए कितना काम हो रहा है ये भी तो देखिए। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर फीमेल पायलट्स है, विमेन पायलट्स, तो वो इंडिया में है। इंडिया में 9-10 बड़े बैंक्स में 8-9 की सीईओ औरतें हैं। मैं जो फिल्म बना रहा हूँ वैक्सीन हो, तो सारी औरतों ने बनाई है। तो ये हर समय शिकायत करने में विक्टिम कार्ड के मोड से बाहर निकलना चाहिए। हर समय ये सोचना कि कोई आपके अगेंस्ट है, औरतों के अगेंस्ट कोई नहीं। सुन, आपने बोला मैं जवाब देता हूं, आपने क्या आप बोलिए, तो वो भी सही नहीं है। लेकिन अगर किसी ने ये खड़े होकर बोला कि भाई मुझे ऐसा लगता है शराब पीना एम्पावरमेंट नहीं है, आई एम श्योर कि उनके विचार मेरे तो ऐसे हैं कि लड़के के लिए भी शराब पीना एम्पावरमेंट नहीं है। मैं दोनों, लेकिन चूंकि महिला की बात थी तो किया। और आपको जो शायद बात नहीं समझ में आती है कि फिल्में और जो वीडियोस और जो पिक्चर्स होती है वो धीरे धीरे हमारे दिमाग को कंडीशन करती है, वो हमारे बिलीफ सिस्टम्स बनते जा रहे हैं। और ये एक समस्या भारत में बन गई है। आप माने चाहे ना माने, लेकिन स्टैटिस्टिक्स कुछ और बोलती है, ओपिनियंस कुछ और बोलती है। आज अल्कोहलिज्म जो है वो लड़कों से ज्यादा फास्टर ग्रोथ उसकी आज अर्बन लड़कियों में। तो आप सोचिए, आपने सिखाया। दूसरी बात, जो चलता है वो अच्छा है, आपने कहा करण जौहर, वो लोग देखना चाहते हैं इसलिए ऐसा है। तो आपके घर में पोता या बेटा हो तो हम गारंटी करता हूँ प्ले बॉय देखना ज्यादा पसंद करेगा, गीता पढ़ना नहीं पसंद करेगा। अब ये आपकी चॉइस है, आप महिला है, आपकी चॉइस है, आप उसको प्ले बॉय खरीद के दीजिए, गीता खरीद के दीजिए। अगर प्ले बॉय मार्केट में अवेलेबल होती तो मैंने ये नहीं कहा दोनों चीजें नहीं करण जौहर की मूवी थिएटर में रिलीज होती है, चक दे इंडिया भी रिलीज होती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि
क्योंकि लोग उसकी नहीं, तरफ जाते हैं। मराठी फिल्में भी होती हैं, मलयालम फिल्में भी थिएटर में रिलीज होती हैं। हाँ। आपकी अवेयरनेस नहीं है वो अलग बात है, लेकिन फिल्में सब रिलीज होती हैं, लोग देखते नहीं हैं। प्लेबॉय तो मैंने नहीं देखा कि अगर प्लेबॉय भी मिल रहा है और इंडियन टुडे भी मिल रहा है। चलिए, so let's not get offline. Let's not, please one minute, sir, 1 minute, sir. You were finished with your question, sir. That I is a think- billion-dollar market. I'm not saying that. I'm saying women empowerment. I agree it is wrong. It is wrong for boys. It is wrong for girls. But when you see the movie, how the women really connected with that movie, because it's somewhere connected with them. So you cannot say कि हम जो कहते हैं कि सिस्टम अगर आप कहते हैं कि आप ऊपर से इम्पोज कर सकते हैं, बहुत गलत होगा। इम्पोज नहीं किया जा सकता है। नहीं, कोई किसने बोला ये? बोला आपको ऐसा क्यों लगा? मैंने आपको ऐसा सोचा दिमाग में। हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। आपको लगा कि हम बहुत एंग्री हैं, नहीं, ऐसे ही मुझे भी आप- लगा शायद आपकी आप टोन सब- समझना, पर we'll talk. Yeah, No, no, yeah. it's the last question. We are closing the show, but I'll just interrupt 1 minute. Yeah, just it was an opinion that what is women empowerment. You see, what you quote is very correct. It's your choice. Girl can drink, boy can drink. Why not a girl? I think he's not disputing that. No. One minute. See, you are speaking. I was I actually. just said 4 men talk about women empowerment. What I'm saying Whereas when we girls, if you I'm agreeing with you. आप दोनों ने इतनी देर बोला, मुझे 2 मिनट तो बोले, मैं जब से सुन रहा हूँ। तो आप भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसका कंसेप्ट ये है कि that is not what is women empowerment. When you're talking about women empowerment, that doesn't mean कि मैंने दारू पी ली तो मैं women empowerment. That is what he was trying to say. He was never saying that if a boy drinks, a girl cannot drink. I'm just closing the question. And of course, we'll have the discussion. Madam, the last one. And this is the last. We'll go down. मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने एक नया शो स्टार्ट किया वोक शो, तो वो बहुत अच्छा लगता है, बट मैं थोड़ा उसके बारे में जानना चाह रही थी। वो आपने मतलब कॉमेडी उस जॉनर में लिया है कि थोड़ा सीरियस या सैटायर, मतलब थोड़ा उसके बारे में, शो के बारे में। उसको जो भी आप चाहे बोल लीजिए, रोस्ट कह दीजिए या सटायर कह दीजिए। सटायर कई बातें ऐसी हैं कि अगर वो व्यंग्य के माध्यम से कही जाए तो ज़्यादा असर करती हैं। तो मैं कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था और मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में मुझे कुछ कहना चाहिए, इसलिए मैंने वो किया और वो अचानक धीरे धीरे वायरल हो गया। मुझे आइडिया नहीं था, मैं तो ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था। लॉकडाउन जब था तो वो सेकंड लॉकडाउन में कुछ करने को नहीं था, तो मैंने रिसर्च करके उस पर किया था। वो पड़ा हुआ था, तो अभी हमारे यहाँ वो कहाँ गई प्रियंका यहाँ थी, तो उसने बोला कि सर ये पड़ा, इसको रिलीज कर दे। मैंने कहा तुम्हारा मन है तो कर दो, पर कौन देखेगा? उसने कर दिया, लेकिन वो ऐसा वायरल हो गया, मुझे पता नहीं था कि बहुत पॉपुलर हो गया, ऐसा कर रहा है। मैडम, अभी इनका हाल ये है कि वो हो या टोक हो, जिस पे हाथ लगाएंगे हिट जाएगा। अभी तो इनका हाल है, अभी तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। आई थिंक विवेक, आई मस्ट थैंक यू, आई मस्ट थैंक द ऑडियंस फॉर यू। थैंक यू सो मच। We had a lovely session, a very nice friend session. I hope you enjoyed Vivek. या डेफिनेटली ऐसा लगा घर में बैठ के। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। आप लोग को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। एंड विवेक, थैंक यू सो मच। I'll close the show from here. थैंक यू।